Hello friends, welcome to the channel Maths or Logic. Are you also really goofed up with the HCF or LCM word problems? Believe me, I also struggled a lot in deciding when to use HCF or LCM in the word problem. But at last, I got sure short idea and a crystal clear understanding of such word problems solutions. So today I'm going to share a very secret trick and the hints with all of you to end this trouble forever. So watch this video till the end. First of all, we will see what's an HCF. HCF is the highest common factor of two or more numbers. Let's see how to find what's an HCF of two numbers. I have 24 and 72 and I need to see the greatest common factor or the highest common factor of these two numbers, 24 and 72. So I guess the common factor, this 2 is a common factor and this 3 is a common factor. So these numbers separately are the common factors. But what is the highest common factor? So it means that the highest common factor is here as 2 multiplied by 2 again, and then this 2 and 3. So common factor, common factor, common factor, and this common factor. We will take all these numbers and multiply it, and this number will be the HCF of 24 and 72. How will I decide whether I have to apply HCF or LCM? So there are certainly some keywords, or these are the few that I have mentioned here. One is the greatest, highest, maximum or largest. And there may be some other keywords also similar to this. तो जहाँ पे भी बड़े की बात करेंगे, बड़े की बात, तो वहाँ पर जो है हम HCF लगाएंगे. I have a question here and I will decide how to identify whether I'll be applying the HCF or the LCM to the given numbers here. Because these are the tricky questions but very easy questions. आपको सिर्फ हिंट पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स में हिंट कहाँ दिए हुए हैं. Which I have. So you can also read a question here and you will see कि हमें hints कहाँ से ढूंढने हैं स्टेटमेंट में. I have two drums in which I have stored water of 120 liters and 175 liters. So I have two drums and the quantities are 120 liters and the 175 liters. So now I need a mug of maximum capacity. एक मग चाहिए मुझे जिसकी हो मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन टेक आउट द वाटर फ्रॉम ईच ड्रम बाय एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. ये ढूंढनी है मैक्सिमम कैपेसिटी. सो हियर इज द फर्स्ट हिंट एंड बाय द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कि मुझे एक होल नंबर चाहिए. ठीक है, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली मुझे इसमें से कि 7 बार में पानी बाहर निकल जाए फॉर एग्जाम्पल, या फिर 10 बार में निकल जाए, या 50 बार में निकल जाए, या फिर 52 टाइम्स में निकल जाए, बट इट मस्ट बी अ होल नंबर. ठीक है, एंड होल एग्जैक्ट का मतलब होता है कि ये जो है एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है. ये वाला जो क्वांटिटी है डिवाइड कर रही है. क्वांटिटी ऑफ ड्रम इज exactly divisible by quantity of mug. जब ये exact divide कर रही है इसका मतलब है कि जो quantity of mug है वो factor है, is a factor. So now we will see the next statement. Find the full or the maximum capacity of the mug. So maximum अभी तक हमने पता किया कि ये factor होना चाहिए. अब बोलते हैं कि maximum capacity. Maximum का मतलब क्या हो गया? Factor. तो हाईएस्ट हो गया, बट हमें दो चीज़ों का लेना है तो कॉमन होना चाहिए इनके बीच में. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए. ठीक है, इसका भी ले ले और इसका भी, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी द हिंट्स नाउ. द मग हैज टू टेक आउट द वाटर कंप्लीटली out of both the drums. So we have two things to compare now by exact times. The second it says the mug's capacity will be lesser than the drum. जो ये मग है इसकी क्वांटिटी जो है, कैपेसिटी जो है वो इन दोनों ड्रम्स से या तो बराबर होगी या फिर उससे कम होगी. तो इसका क्या मतलब है कि मुझे एक छोटा नंबर चाहिए. तो मतलब कि फैक्टर जो है हमारा छोटा होता है, ये लेस देन होता है, लेस होगा या इक्वल होगा, इससे बड़ा नहीं होगा. तो यानी कि हम HCF चूज कर सकते हैं या बड़ा हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं HCF यूज करूँगी. थर्ड क्या होता है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी. सो द मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है HCF. सो नाउ मुझे डिसाइड कर लिया मैंने कि यहाँ पर मुझे HCF निकाला है, ना कि LCM निकाला है. चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. नाउ आई हैव द क्वांटिटीज. दिस इज ओके.
So this is 10 and this is 6 and this is 2. So this is 120. Now I have here as 5 multiplied by 5 multiplied by 7. So what is common between these? This is only just 5. एक 5 ही common है, बाकी यहाँ पर 5 और 7 बचते हैं, यहाँ पर 5 और 7 नहीं है. And the highest common factor is just 5. So 5 liters is the HCF, means the capacity of the mug. Maximum capacity का जो मग है वो होना चाहिए मेरे पास. और कैसे कि 5 लीटर्स के मग को कितनी बार निकालना पड़ेगा, यहाँ से 24 टाइम्स निकालना पड़ेगा 120 लीटर्स को खाली करने के लिए. और इसको 5 लीटर्स को 35 टाइम्स, देखिए जो बच रहा है वो टाइम्स है, ठीक है. तो इसको 35 टाइम्स निकालना पड़ेगा 175 को खाली करने के लिए, 75 लीटर्स को ड्रम को खाली करने के लिए. सो मेरे पास HCF क्या बचा is 5. Let's move to the another question that is 825 centimeters, 675 and 450 centimeters respectively. अब मुझे क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट टेप चाहिए जो मेरे लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर पाए. चलिए देखते हैं. एक रूम है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टेप है मेरे पास, इंच टेप जो है वो क्या करे, इनको लेंथ को, जो ब्रेथ है और जो हाइट है उसको जो है एग्जैक्टली जो है मेजर कर पाए. मतलब कि मुझे आधा पौना यूज़ नहीं करना टेप को, हर बार फुल टेप यूज़ होगी. हर बार फुल टेप यूज़ होने का मतलब क्या होगा, ओके. द सेकेंड हैंड इट सेज द टेप लेंथ वुड बी लेस और इक्वल देन द गिवन मेजर. या तो टेप इनसे लेंथ में छोटी होगी या बराबर हो सकती है. सो मुझे क्या चाहिए कि एक नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करे लेंथ, ब्रेथ और हाइट को. इट मीन्स इट्स अ फैक्टर नॉट अ मल्टीपल. और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, I need the longest tape, means the highest common factor. ठीक है, the word as it suggests, keyword is the longest tape. So now I can solve this as 825, 675 and 450. इसके मैं common factors जो हैं चलिए अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं कुछ. ये 5 एक कॉमन फैक्टर है, ये 5 भी एक कॉमन है, और ये 3 जो है ये भी कॉमन है. अब कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 75 सेंटीमीटर्स का जो है इंच टेप होना चाहिए जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर. ओके, चलिए देखते हैं एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन. वो कॉमनली काफ़ी एग्जाम्स में जो है देखा जाता है, school exams also. So ये question है, Ronit has a 36 white chocolates and round such a way that each row contains equal number and full single flavor chocolates only. कि यहाँ पर हर रो में equal number होना चाहिए और single flavor chocolate होनी चाहिए. आप दोनों flavors को mix नहीं कर सकते किसी भी रो में, और हर रो में equal number होना चाहिए chocolates का. किसी भी रो में, किसी एक रो में 5, किसी में 4, किसी में 3, आप ऐसे नहीं रख सकते, ठीक है. So now we have to find what is the maximum number of chocolates that can be arranged to each row of single flavor. Now I have 36 chocolates of white color and the dark chocolates I have is 16. So यहाँ पर कुछ keywords हैं जो आप मेरे साथ मार्क कर सकते हैं. वो है the number of chocolates in each row has to be full number में होना चाहिए. तो जो full है it means it's a whole number, ठीक है, आधे पौने नंबर हमें नहीं चाहिए. सेकेंड हिंट बोलता है in each row the number of chocolates of any flavor must be equal. कि हर रो में जो है सिंगल फ्लेवर्ड होना चाहिए. जैसे यहाँ पर जो मान लीजिए वाइट चॉकलेट्स हैं, और सेकेंड रो में अगर डार्क है तो यहाँ ये क्वांटिटी. आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें आपने 6 बैठा दिए, नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो हिंट 2 क्या बोलता है कि ये एग्जैक्टली नंबर्स जो हैं ईच रो के जो क्वांटिटी है वो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करने होने चाहिए. मतलब कि ये दोनों का, हर रो का जो नंबर है वो फैक्टर होना चाहिए, नॉट अ मल्टीपल. सो मैक्सिमम नंबर का मतलब क्या हुआ, मुझे एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स का मतलब हुआ कि मुझे एक कॉमन फैक्टर चाहिए जो इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करे और वो हाईएस्ट हो. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज, मेरे पास हैं 36 चॉकलेट्स और हैं 16 डार्क चॉकलेट और 36 वाइट चाहिए. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये है मेरे पास 36, ये है मेरे पास 6. व्हाट इफ अगर नंबर यहाँ पर एग्जाम में चेंज हो. सो यूजिंग दीज हिंट्स कि होल नंबर होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए. तो मतलब कि इनका मुझे
स्मॉल फैक्टर्स में ब्रेक करना है। सो मैं इसे ब्रेक करूँगी और इनका HCF ढूँढूँगी। So 2 into 2, that is 4, is the highest common factor. It means each row में 4 चॉकलेट्स होनी चाहिए और आप देखेंगे यहाँ पर हर रो में आपको 4 चॉकलेट्स ही मिल रही हैं। यहाँ पर भी 4 है, यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के डार्क चॉकलेट्स को जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सो इफ यू फाइंड सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं फॉर क्यू बनाने के, कि आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के, और हमने उनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है कि गर्ल्स बॉयज़ जो हैं वो ऐसे ही लगेंगे। वैसे भी कुछ ट्रीज प्लांटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू फॉर